So hi guys, welcome to the next video. We'll be starting with plea bargaining right now. Let me give you a bit of gist in respect to what is the issue in relation to plea bargaining around us. First of all, plea bargaining. ज़्यादा ही night हो गया. It traces its routes from the 142nd Law Commission report. So a great start, a great introduction for an answer. In this report, the Law Commission of India found that and that the amount of time spent by the accused in judicial custody prior to the trial surpasses the maximum sentence that can be given if they are found liable in many cases. Those recommendations were further supported by 154th Law Commission report plus 177th Law Commission report. The report of Malimat Committee on the Reform of Criminal Justice System 2003. इसके बाद एक और 2003 में मालिमत कमेटी आई. मालिमत कमेटी, ठीक है. मालिमत कमेटी ने क्या बोला? सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यदि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर it observed that bargaining will reduce the immense load on courts, thereby accelerating the resolution of criminal trials. Report of Malimat Committee observed that plea bargaining will reduce the immense load on courts. Right, remember that. This eventually led to the criminal law amendment. इसके बाद इसकी वजह से आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट इन 2005. Sorry, right. The amendment came in 2005. ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन नोट पे आप लिख सकते थे. इसके बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ. राइट. हुसैन रजा खातून का एक केस था. काउंटलेस लैंग्वेशिंग इन जेल अवेटिंग ट्रायल. Pre-trial negotiations between the accused and the prosecution, wherein the accused agrees to plead guilty in exchange of certain concessions by the prosecution. Plea bargaining is unconstitutional and illegal. It encourages corruption and collusion, thereby polluting the pure fountain of justice. Right. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2005 में जो है, जो मैंने आपको बताया, इंट्रोड्यूस हुआ था ये 265A टू 265L में. राइट. अब ये बीएनएस में रीइंट्रोड्यूस हुआ. जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड. हाँ, तो ये अभी बीएनएस में रीइंट्रोड्यूस हुआ है. सॉरी फॉर दिस. तो या वी आर बैक. सो ये भी बीएनएस में फिर से रीइंट्रोड्यूस हुआ. और इसमें इसको लाया गया कौन से चैप्टर में? 20 सेकेंड या 25 24 सेक्शंस 289 टू 300. 11 सेक्शन पूरे आए हैं. राइट. 11 सेक्शंस. राइट. सो दिस इज द सीन. कौन से रिकमेंडेशन में हुआ था ये भी मैंने लिख दिया. The basic principle here is of nolo contendere, where the defense submits the courts, where the defense submits to the court judgment as if he had pleaded guilty without actually pleading guilty. Right. So that is the scene. ये आप जरूर लिखिएगा अपने आंसर में, नोलो कंटेंडेरे का मतलब. राइट. Where the defense submits to the court's judgment as if he had pleaded guilty without actually pleading guilty. वो एक बार्गेनिंग ज्यादा मिल जाती है. इस वजह से ये कोर्ट लाया. राइट. गुजरात वर्सेस नटवर हरचंदी. The very object of law is to provide cheap and expeditious justice. Fundamental reforms are eventually inevitable. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रो जजमेंट है. ये लिख सकते हैं. आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है इसके बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं.
इसके अलावा जस्ट सेकंड, कुछ रह तो नहीं गया? नो। देखिए क्या क्या लाता है ये। इट रिड्यूसेस लेचेस, टाइम एंड कॉस्ट कम होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन अक्यूज का होता है ट्रायल में, म्यूचुअल कॉपरेशन, एक्ट्स एज एन एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, लेस, अगर जेल में टाइम कम होगा तो स्टेट का पैसा कम लगेगा, राइट। हेल्पफुल वेयर एविडेंस इज लैकिंग, ऑफ कोर्स। स्विफ्ट ट्रायल होता है, अवॉइड्स मीडिया अटेंशन, ऑफ कोर्स। इट अशर्स रीहैब फ्रॉम ट्रायल स्टेज इटसेल्फ, क्योंकि बार्गेनिंग का प्रोस्पेक्ट तभी से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स और ड्यू प्रोसेस नहीं कभी कभी इसमें फॉलो हो पाता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रोस्पेक्ट भी है, इट प्रेजेंट्स सम मॉरल हजर्ड एज वेल, राइट। सो दिस इज द सीन। ठीक है, अब ये बीएनएस के प्रोविजंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या लिखा गया मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, where punishment of for crime is less than 7 years, it does not apply to offences affecting socio-economic condition of the country. It does not apply to offences against women and children. Right. Accused may apply for plea bargaining within 30 days of framing the charges. देखिए अब यहाँ पे आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए ऑफ अ क्रिमिनल केस। ठीक है, क्रिमिनल केस के चार्जेस कब फ्रेम होते हैं। ठीक है, सेक्शन 193 जो था ऑफ सीआरपीसी, section 193 of CR. I think it's just a second. Give me a second. Three. Yes, it is not CRPC. It is BNSS only. मैंने कॉपी में लिख रखा था अपनी। तो उसमें किस चीज का प्रोस्पेक्ट दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के बाद ही ये जो टाइमलाइन का प्रोस्पेक्ट मैंने आपको बताया अभी, वो यहीं पे इंक्लूड होता है, राइट। So that is the scene. And report on mutually satisfactory disposition is submitted to the court. The case shall be disposed on satisfactory disposition. अगर कोर्ट satisfied है इस पर्टिकुलर डिस्पोजिशन से, तभी डिस्पोज ऑफ होगा ये केस। ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर होगी, जजमेंट शैल बी फाइनल नॉन अपीलेबल एक्सेप्ट स्पेशल लीव पिटिशन अंडर विच आर्टिकल प्लीज राइट इन कमेंट्स। Court shall have all powers vested in respect to bail, trial, and other matters. Period of detention undergone to be set off against the sentence, right. नोलो कंटेंडरी का मैंने आपको प्रोस्पेक्ट बता दिया था। एनी स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स स्टेटेड बाय द अक्यूज्ड अंडर द प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन shall not be used for any purpose other than the purpose of chapter 14, which is plea bargaining. It's not 14 now, I think it's 24 if I'm right. Yes. It does not apply to Juvenile Justice Act, remember that. Reforms क्या क्या चाहिए? Strong measures to prevent victim intimidation for forcing bargain. There should be a clear timeline for mutually satisfactory disposition. टाइमलाइन तो है ही नहीं ना हमारे पास, देर इज नो टाइमलाइन राइट नाउ कि होना चाहिए ये है, लेकिन कैसे किस समय के अंतर्गत होना चाहिए ये हमें नहीं बताया गया है। प्ली बार्गेनिंग का पूरा सीन, इट क्लियरली डिफाइंस विच शुड क्लियरली डिफाइंस विच ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस अंडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग, जो हमें अभी तक नहीं पता है, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं, राइट। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ केसेस है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मुरलीधर मेघराज वर्सेस महाराष्ट्र का एक केस है। मुरलीधर मेघ मेघराज वर्सेस महाराष्ट्र का एक केस है। इट ऑब्जर्व दैट प्ली बार्गेनिंग इज अनसुटेबल इन इंडिया। फर्दर द सेम was stated, plea bargaining
is not suitable in India. Plea bargaining should never be allowed in India and particularly observe that it is an exceptionally excusable practice. ठीक है, कचिया पटेल वर्सेस गुजरात के केस में ये बोला गया था। ठीक है, तो ये सीन है। प्ली बार्गेनिंग हम यही आसान शब्दों में यही समझ जाए दैट इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन अ प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंडेंट वेयर बाय द डिफेंडेंट ऑलरेडी प्लीड्स गिल्टी टू अ लेसर चार्ज इन एक्सचेंज फॉर लीनियंट सेंटेंसिंग और और इवेंचुअली एन अग्रीमेंट टू ड्रॉप द चार्जेस, ताकि दोनों स्टेट और जो डिफेंस क्लेम्स है वो सेटल डाउन हो जाए। तो ये प्रोस्पेक्ट है हमारा ऑफ प्ली बार्गेनिंग। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो, बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया ताकि आप पेपर में भी समझ जाए। नोट्स आपके पास है ही, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।